السلام علیکم ناظرین، وائس ٹی وی اردو پر براہ راست شام 8 بجے کا اردو خبرنامہ لے کر میں رضوان سلطان آپ کی خدمت میں حاضر۔ اردو خبرنامہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں TCI میکس سیمنٹ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عوامی ایکشن کمیٹی اور اتحاد المسلمین پر 5 سالہ پابندی عائد کرنے کی مذمت کرتے ہوئے PDP صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ ایک طرف سے میر وائز کو Z+ سیکیورٹی فراہم کی گئی، وہیں دوسری طرف سے ان کی ہی جماعت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ محبوبہ مفتی نے سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ طاقت کی پالیسی کب تک چلے گی۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ کہیں ان جماعتوں کے سربراہاں کو بلیک میل کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی۔ PDP صدر نے کہا کہ مرکز نے اب بہت طاقت کی پالیسی کا استعمال کیا، اب یہاں لوگوں کو ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف سے گورنمنٹ آف انڈیا یہ سمجھتی ہے عمر فاروق صاحب کی نزاکت کو، اور جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو Z+ کیٹیگری کی سیکیورٹی دی ہے ایک طرف سے، دوسری طرف سے ان کی پارٹی کو بین کر دی ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے کوسوں دور ہے کہ آخر یہ جو مسکولر پالیسی ہے یہ کب تک چلائیں گے؟ یا تو ایسا ہے کہ یہ مولوی عمر فاروق صاحب ہو، یا جو یہ دوسری جماعت ہے اتحاد المسلمین انصاری صاحب ہو، یا تو گورنمنٹ آف انڈیا ان کو بلیک میل کر رہی ہے کسی چیز کے لیے کہ آپ ایسا کرو، آپ ایسا کرو، تو اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ ایکشن لیتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ایک طرف سے آپ ایک شخص کو Z+ کیٹیگری میں لاتے ہو، سیکیورٹی دیتے ہو، دوسری طرف سے اس کی آرگنائزیشن کو بین کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے بہت مسکولر پالیسی اختیار کی، اب کہیں نہ کہیں لوگوں کو ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، نرمی کی ضرورت ہے۔ تو ایسے میں جب آپ ایک ریلیجیس ہیڈ کے خلاف اتنا بڑا ایکشن کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کشمیر کے دل اور زیادہ آپ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف سے گورنمنٹ آف انڈیا یہ سمجھتی ہے عمر فاروق صاحب کی نزاکت کو، اور جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو Z+ کیٹیگری کی سیکیورٹی دی ہے ایک طرف سے۔ نیشنل کانفرنس پر نشانہ سادھتے ہوئے PDP صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ امید تھی کہ نئی منتخبہ سرکار آنے کے بعد لوگوں کو راحت ملے گی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس ہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ رولنگ پارٹی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے خاموشی بن بیٹھی ہے۔ کہ جو یہاں چنی ہوئی سرکار آئی، جس سے لوگوں کو امید تھی کہ کہیں نہ کہیں ہمارا بچاؤ ہوگا، تو اس کا تو الٹا ہو رہا ہے۔ اگر اس سے پہلے BJP نے جماعت اسلامی کو بین کیا، ہم کو سوچے تھے گورنر رول ہے، کیا کریں گے، آواز اٹھا سکتے ہیں، مگر آج عوامی راج کے ہوتے ہوئے اتنی زیادتی ہو رہی ہے، اور جو رولنگ پارٹی ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ جو ہے یہ معاملہ اور زیادہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس قسم کے ایکشن جو پہلے ہمیں لگتے تھے اب نارمل ہے، غلط ہے، آج کہیں نہ کہیں جو رولنگ پارٹی کی خاموشی کی وجہ سے، چپی کی وجہ سے لگتا ہے یہ تو نارمل ہے، یہ تو سب ٹھیک ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ جو یہاں چنی ہوئی سرکار آئی، جس سے لوگوں کو امید تھی کہ کہیں نہ کہیں ہمارا بچاؤ ہوگا، تو اس کا تو الٹا ہو رہا ہے۔ اگر اس سے پہلے BJP نے جماعت اسلامی کو بین کیا، ہم کو سوچے تھے گورنر رول ہے، کیا کریں گے، آواز اٹھا سکتے ہیں، مگر آج عوامی راج کے ہوتے ہوئے اتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ ادھر جموں میں اسمبلی کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے NC رکن اسمبلی جسٹس حسنین مسعودی نے پابندی لگانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جو نارملسی کا دعویٰ کیا جاتا ہے ایسے فیصلوں سے اس کی نفی ہوتی ہے۔ کانگریس رکن اسمبلی نظام الدین بٹ نے کہا کہ اس وقت یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے، جبکہ عوامی اتحاد پارٹی سے رکن اسمبلی شیخ خورشید نے کہا کہ ایسی چیزیں بالکل درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سبھی سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ چلا کر ہی یہاں امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ ہونا چاہیے، ہمارا ہر قدم ہونا چاہیے ریکنسیلیشن کی طرف، امن کے لیے، امن کی سمت میں، اور یہ جو قدم ہے یہ ایک پیچھے کی طرف قدم ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جس سفر پر ہم چل پڑے ہیں، جو ہمارا
एक नॉर्मलसी का नॉर्मलसी का जो नैरेटिव है उस नैरेटिव की बिल्कुल ये तकज़ीब करता है। जो ये दावा था कि जो मार्केट किया गया था 5 अगस्त 2019 के फैसलों को नॉर्मलसी के नैरेटिव पर, ये उसकी खुद में नफ़ी है। तो ये होना नहीं चाहिए। ये टाइमिंग ठीक नहीं, गलत है। पॉपुलर गवर्नमेंट इन प्लेस है, उसके बाद इस तरह के इक़दाम आवाम में एक रोष पैदा कर सकते हैं, जिसके लिए पॉपुलर गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चली वो इतने साल, उसके बाद इलेक्शंस के बाद ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं था। एक बात इसमें ये, दूसरी बात ये है कि यहाँ किसी ऐसे इक़दाम में जो आप देखते हो सख्तगीर इक़दाम है, उसमें ट्रायल ही नहीं लगता। जुडिशरी का रोल ही ख़त्म हो गया है, तो वॉइस कौन सी रहेगी? ना रिकन्सिलेशन, ना डायलॉग पॉलिटिकल लेवल पे, ना जुडिशरी के लेवल पे किसी तरीके की रिलीफ या यही मीर भाई साहब आज से 2 हफ्ते पहले जो है दिल्ली गए थे और वहाँ जो है बातचीत चल रही थी उनके साथ, और पीछे जब वो यहाँ आए श्रीनगर वापस आए तो उनकी पार्टी को बैन करना, ये चीज़ें सही नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि एक म्यूचुअल कंसेंसस हो और सब लोगों को ऑन बोर्ड लेके जो है हालात सही हों और देश आगे बढ़े, तो ये चीज़ें जो है ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। थैंक यू। यही मीर भाई साहब आज से 2 हफ्ते पहले जो है दिल्ली। जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी की मांग के बीच जम्मू कश्मीर हुकूमत अब जम्मू कश्मीर में मज़ीद 83 शराब की दुकानों की नीलामी कर रही है। इतलात के मुताबिक महकमे ख़जाना की तरफ से एक्साइज पॉलिसी 2025-26 के लिए कश्मीर के 4 और जम्मू के 10 अजला में 83 दुकानें खोलने के लिए बोलियां तलब की गई हैं। इतलात के मुताबिक ये पॉलिसी इस साल 1 अप्रैल से लागू होगी और 1 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। कश्मीर में मुख्तलिफ अजला के 14 मकामात में ये शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जिनमें श्रीनगर के 7 म्यूनसिपल वार्ड, सोनामर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, बारामुल्ला, उड़ी और कपवाड़ा के सियाहती मकाम शामिल हैं। उधर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने श्रीनगर में संतूर होटल की नीलामी के लिए अमल शुरू कर दिया है, जिसकी मुतवक्किल सालाना आमदनी 44 करोड़ रुपए है। हासिल करदा सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक मनसूबा बंद नीलामी हुकूमत की वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है, ताकि बेहतर कारकर्दगी, बेहतर खिदमात और आला महसूलात के हसूल के लिए अवामी असासों को मोनेटाइज किया जा सके। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर में टट्टू ग्राउंड और पहलगाम गोल्फ क्लब समेत दीगर अहम जायदादों पर भी इसी तरह के मोनेटाइजेशन और रीडेवलपमेंट मॉडल्स पर गौर किया जा रहा है। बताते चलें कि असम्बली में उमर अब्दुल्ला ने जानकारी देते हुए कहा था कि इस वक्त जम्मू कश्मीर पर 1,25,000 करोड़ का कर्जा है। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी ने उमर अब्दुल्ला की तरफ से डेली वेजर्स के मसाइल को हल के लिए कमेटी बनाए जाने पर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस दौरान तंजीम सदर वजाहत हुसैन दुरानी और डेली वेजर्स फोरम सदर सजाद परी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से कमेटी बनाने पर शुक्रिया अदा करते हैं। ताहम तंजीमी नुमाइंदों ने सरकार से जल्द रिपोर्ट को पेश करने की मांग की। इस दौरान तंजीमी नुमाइंदों ने कहा कि इस हवाले से पेशरफ्त के लिए 6 रुकनी कमेटी भी तश्कील देने का फैसला किया है। इससे पहले भी बहुत सारी कमेटियां देखी है, उमर सरकार में भी हमने देखी है। जब उमर अब्दुल्ला साहिब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी कैबिनेट सब कमेटी बनी, रहीम रथर साहब उसके प्रेसिडेंट ये थे, चेयरमैन थे। उसके बाद में SRO 52 भी आया। तो हमें उम्मीद है कि इस बार वैसा कुछ नहीं होगा। जो कमेटी बनी है वो बराए नाम नहीं होगी, बल्कि वाकई में वो 2-3 महीनों में ही अपनी रिकमेंडेशन देगी, ताकि सरकार के लिए कोई रास्ता बने और हमारे जो डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, सीजनल है, जितने भी लोग हैं, लैंड ओनर्स है, वो सारे रेगुलर हो जाए। इस सिलसिले में हमने अपना एक इजलास बुलाया था, उसमें हमने गौर फिक्र की और हमने भी एक कमेटी बनाई है, 6 रुकनी कमेटी, जो डेली वेजर्स और डेलीवेजर्स फोरम और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की मुश्तरका कमेटी होगी अक्रॉस यूटी ऑफ J&K के, जो परसुएशन करेगी, इस कमेटी के साथ रब्ता रखेगी जो सरकार ने बनाई है, उन तक अपनी जो हमारे तजवीज़ होंगे, जो हमारे सजेस्टिव मेजर्स होंगे, जो कोई भी हक़ाइक़ हमारे पास है, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। तो हमने भी एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी क्लोज लिएज़ान रखेगी सरकार की कॉन्स्टिट्यूट कमेटी के साथ, ताकि वक्त रहते हुए इस मामले को हतमी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। उधर ज़िला पुलवामा के संगरवार इलाके के बाशिंदों ने हुकूमत की तरफ से बजट में इस इलाके को सियाहती मुकाम पर लाने के लिए कोई ऐलान न करने पर बरहमी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि इलेक्शन से कबल
सियासी जमातों ने वादा दिया था कि संगवारी को सियाहत के लिए प्रमोट किया जाएगा, ताहम मुकामी लोगों ने के मुताबिक बजट में इस इलाके के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। मुकामी लोगों ने कहा कि मेंबर असम्बली राजपुरा ने अगरचे उन्हें वादा दिया था, लेकिन वो वादे सराब साबित हुए। का टाइम था तो जो भी आता था, चाहे वो नेशनल का था, चाहे पीडीपी का था, चाहे कौन सी पार्टी का भी था, कोई सी भी पार्टी का था, वो ये कहता था कि मैं आप हमें वोट दीजिए, मैं इसको टूरिज्म में कन्वर्ट करूंगा, मैं टूरिज्म को यहाँ पे लाऊंगा। और उसके बाद अभी तकरीबन 3-4 महीने हो भी गए हुकूमत को बने हुए, कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, रिजल्ट अभी भी ज़ीरो है। जब इन्होंने रिसेंटली अभी बजट पास किया, बजट में भी हमारा कोई नाम निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये जंगल इतना खूबसूरत, हरा भरा, गुलमर्ग से भी खूबसूरत जंगल है, टूरिज्म के लिए इन्होंने हमारे साथ वादे किए हैं, तो ये वादा हमारे साथ पूरा किया जाए बस। ये एरिया है, ये बहुत खूबसूरत इलाका है। तो जब हमारी हुकूमत नहीं थी इससे पहले, तो जब हमारी गवर्नमेंट नहीं बनी हुई थी, तो हमारे जो एमएलए साहब थे, जो भी कोई भी था, तो आ रहे थे कि हम इस टूरिज्म को डेवलप करेंगे। तो आज तक 3-4 महीने हो गए गवर्नमेंट बनी हुई है, तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई इस टूरिज्म हमारे संगनवाड़ी एरिया में। तो उसके बाद जब बजट पास हुई है, उसमें भी हमारा कुछ भी वहाँ पे नहीं मैसर हुआ, तो हम भी मायूस हुए कि ये कौन सा मसला है। तो अब हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, और खासकर हमारा एमएलए साहब जो आज गुलाम मोहिउद्दीन मीर साहब है, उससे हमारी गुजारिश है कि संगनवानी जो हमारा इलाका है, इसको डेवलप की जाए, क्योंकि ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। जीएमसी हंदवाड़ा में नाकाफ़ी रहायशी मकानात इंतज़ामात के बायस कपवाड़ा, केरन, लोलाब, टंगरा, कलामाबाद और लंगेट समेत मुख्तलिफ इलाकों से रोज़ाना आने वाले मरीज़ों को शदीद परेशानियों का सामना होना पड़ रहा है। इन दूरदराज इलाकों के लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो कई सालों से इस मसले का सामना कर रहे हैं। इलाके के लोगों ने महकमे सेहत पर जोर दिया है कि वो जल्द अज जल्द इस मामले को हल करे। उधर प्रिंसिपल जीएमसी हंदवाड़ा डॉक्टर खुर्शीद अहमद ने मीडिया को यकीन दिलाया कि अस्पताल की नई इमारत 1 हफ्ते के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगी, जिससे रिहाइश का मसला हल होगा। बहुत अरसा हो गया कि हम ये देख रहे हैं कि हंदवाड़ा एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा जो है, या हंदवाड़ा का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो काफ़ी मैस में है। तो इस बारे में हमने बहुत बार, चाहे मेडिकल सुपरिटेंडेंट है या प्रिंसिपल जीएमसी हंदवाड़ा है, उनसे रिक्वेस्ट की कि कम से कम जो हमारे पास इस टाइम जो बुनियादी ढांचा हमारे पास है, तो कम से कम उसको लाया जाए। तो वहाँ का उनका स्टाफ जो है, मेडिकल स्टाफ जो है, सेमी मेडिकल स्टाफ है, उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल रहे, ताकि ये पहचान रहे कि कौन पेशेंट है, कौन डॉक्टर है। इतना मैस है, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट देखिए, इतना मैस है वहाँ पे कि जो हमारी यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स जो पुरानी थी, तो वो डिसमेंटल हो गई। तो उसके इवज़ में हमें एक बिल्डिंग हाउसिंग की है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जिसमें हम शिफ्ट करने जा रहे हैं, और दूसरी है जो आरएनबी बना रहे हैं, टीचिंग हॉस्पिटल 200, तो वो भी इंशाल्लाह इस साल के एंडिंग तक कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें 500 बेड आपने देखा, हमें 2 काउंटर थे, तो मैंने अभी 6 काउंटर बनवाए। तो 6 के 6 काउंटर, उसमें एक हमने फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक ओल्ड एज पीपल और एक मेल फीमेल, और हमने मतलब वी हैव जस्ट नाउ that will be operational within I think 1 week by ending of this month. जनूबी ज़िला अनंतनाग के काजी गुंड कस्बे के सरकारी स्कूलों में बतौर कुक काम करने वाली ख़वातीन की बड़ी तादाद अपनी मांगों को लेकर पुरजोर एहतजाज किया। ख़वातीन ने जोनल एजुकेशन अफसर के दफ्तर के बाहर जमा होते हुए कहा कि आज इस महंगाई के दौर में उन्हें यौमिया 33 रुपये की तनख्वाह दी जा रही है। ख़वातीन ने कहा कि न तो उनकी नौकरी मुस्तकिल है और न ही उनको तनख्वाहें वक्त पर दी जा रही हैं। ख़वातीन ने कहा कि इस दौरान महकमे तालीम कि वज़ीर सकीना इत्तू से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि उनके मसाइल को जल्द हल किया जाए। स्कूलन मन एज कुक काम करान, तनख्वाह मिलान खास, टोटल रेतस दिवान 900, तिम तक वक्त पे त्रावान, त्रावान वरियस मन 2 लटि तनख्वाह, तरन फिक्री, त्रिक रात नी या 2300 रपये, तरन फिक्री सह रेत, सह 2 रेत कि सह 3 रेत, सोन आलो बोजान कहें, सुबह पन बाल बच त्रावान गर, पन गर सन त्रित, स्कूलन मन गसान काम करान, शुरन वातान ततन
شُرۍ کھیٛاناوان چاناوان مگر اَسہِ نہ حظ چھُ اِنصاف میلان کِہیٖنۍ تہِ وۄنۍ چھِ سٲنۍ رِکوٮ۪سٹ یی أسۍ چھِ دَپان زاڑِ صٲبَس ژٕ پَکناو کَتھ برونٛٹھ أسۍ حظ گٔے سی او صٲبَس تہِ وُترِ ڈایریکٹر أسۍ حظ گٔے ڈایریکٹر صٲبَس تہِ أسۍ چھِ دَپان سٲنۍ کَتھ پَکنٲیِو تُہۍ برونٛٹھ سون سوٗنٛچِو تُہۍ یِم تہِ چھِ غریٖب سون کٔرِو کینٛہہ چارٕ أسۍ چھِ گژھان ڈاک سکوٗلَن منٛز دۄہَس مگر اَسہِ نہ حظ چھِ میلان تَتہِ کِہیٖنۍ نہ حظ اوس سٲنۍ کَتھ کٕہٕنۍ تہِ أسۍ حظ بجٹ حظ چلان ناظرین یہ تھا اردو خبرنامہ، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت ہے اور آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو. اللہ حافظ.